friends, in my today's video, I am going to discuss the strategy required to crack government job after CMA. I would say that CMA is the easiest way to get government job. The government companies mainly hire CMS for the finance position. Okay, for the finance division, the government company hires through two methods. The first one is the on campus, where the government company comes at the CMA campus placement and hires qualified CMS, and the other one is the off campus program, where the government companies bring advertisement through which they hire qualified CMA through the method of off campus. See, now I got placed through campus placement at West Bengal Power Development Corporation WBPDCL as an assistant manager finance. Now I would say, what was the strategy? What was the stages of cracking this government job? See, there were three stages of selection at PDCL. The first one was the written examination, second one was the interview, and the third one was the medical test, where the government company where it test the medical fitness, the physical fitness of the candidates. See, now the journey began on 6th of August, where I got a mail from the institute that PDCL is participating at institute summer campus placement program. ओके, सो यहाँ से जो है मेरा जर्नी बिगेन होता है. एंड ऑन दैट डे, उसी दिन जो है अपना हम एक फ्रेंड को कॉल लगाए ये पूछने के लिए, भाई वो जो है WBCS एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा था. उसको कॉल करके पूछते हैं हम कि भाई जीके, रीजनिंग, मैथ्स कहाँ से पढ़े और कैसे पढ़े. ठीक है, तो फिर लिटरली हम सेइंग दैट, सच बता रहे कि मतलब हम वो तो पूछ तो लिए थे, बट जो मेरा प्रीवियस कंपनी था वहाँ पर इतना प्रेशर था वर्क का, जिसकी वजह से जो है हम मतलब उतना पढ़ नहीं पाए. और सिर्फ विद इन एक ही वीक मेरा था जहाँ पे हम जो है रिवाइज कर लिए थे जो मेरा फाइनेंस का पार्ट है. और मेरा फाइनेंस का पार्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग था, इसलिए स्ट्रॉन्ग था क्योंकि विद इन स्पैन ऑफ 1.5 years आई हैव चेंज 3 jobs. So before each interview, I used to revise each and every part of the finance. तो जिसके वजह से I was fully confident on the finance part. So हुआ क्या कि मेरा सितंबर फर्स्ट वीक में आया मेरा मेल कि 17th of September को जो है एग्ज़ाम होने वाला है. तो एग्ज़ाम के लिए हम उतना खास प्रिपरेशन कर नहीं सके, बस 1 week के लिए हम अपना फाइनेंस पार्ट को जो है रिवाइज कर लिए थे. उसके बाद 17 को जो है हम अपियर किए इंटरव्यू में. हुआ क्या भाई, 95% ऑफ क्वेश्चन वॉज फ्रॉम फाइनेंस पार्ट. द पेपर वॉज ऑफ 200 marks. Okay, and the subject which covered in the paper was SFM, IT, Ind AS, income tax, GST, cost, law. So यहाँ से बच गए हम क्योंकि मेरा फाइनेंस में कॉन्फिडेंस था और जिसके वजह से जो है हम अपना एग्जाम इजीली क्रैक कर सके. अब ये एग्ज़ाम का पार्ट हो गया. उसके बाद 17th of September को एग्ज़ाम दे दिए. उसके 2 महीने के बाद ऑन 24th of November आई विल नॉट फॉरगेट दैट. मतलब वो दिन हम भूल नहीं सकते क्योंकि उस दिन जो है हम लिटरली I cried on that day. On that day, the result came that I have been qualified for the written examination and they advised me to appear for the interview. So yes, on 24th of November को मेरा इंटरव्यू मतलब का आया था मेल. एंड उसी दिन विद इन 2 days I went to Hajra, the Xerox shop. From there I brings the income tax, GST, summary notes and the recent amendments, the recent budgets. From there I brings each and everything because I don't wanted to take any risks. So यहाँ से जो है हम अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किए. आई यूज टू स्टडी 2 hours a day after working for hours in my company, and after giving some coaching classes to my students, I used to study 2 hours a day. And then the day of interview came on 7th of December 2022, where I appeared for the interview. When I entered the room, I was fully confused because there were 4 panelists. In the panel there were 4 interviewers. Okay, so yes, I मतलब अंदर से पूरा जो था हम वीक हो गए थे. I was losing hope
But the thing which was there is my confidence. I didn't lose my any level of confidence. My confidence was high. Okay, so yes, and in that interview, they mainly asked question of income tax, again the GST, the cost audit part, and the recent amendments. Okay, and the budgets, which the recent budgets of which came, and the more important question was, some they have given me some case studies, and on the basis of that I have to give them some logical and reasonable answer. Okay, on the basis of that I have to give them some they have given me some case, is loan is bad or good for the companies. So on that I have to give them a reasonable answer. So on that case, on that question, I said that it depends for why you are taking a loan, आप लोन ले रहे क्यों, and for that I have to do some calculate some finance SFM part like NPV, PI, and I have to compare that the project IRR must be greater than its cost of capital. So I have given that answer, and yes, you have also to you मतलब वहाँ पर आप लोग को ऐसा आंसर देना पड़ेगा जो कि reasonable और logical हो. So yes, my confidence was high. They have asked me question related to GST, income tax, okay, and SFM part. They have asked me some financial ratios. So yes, and yes, on that day my confidence was fully high, and I gave in that interview. Yes, after, and now comes the twist. On 7th of December, I have given the government interview, and on 10th of December, I have been called for an interview at a MNC. It was a MNC. So on 10th of December also, I appeared for the interview at MNC, and there they have asked me some question with related to accounts, Ind AS and SFM. Okay, they have asked me certain question, and I have given exactly same answers of each and every question which they have asked me, and on that basis I got selected. And on that interview they have asked me कि तुम पैकेज कितना लोगे, बट स्टिल आई हैव नेवर हम बताए नहीं, आई डिडंट डिस्क्लोज कि कितना पैकेज आई वांट. So on Friday I've given the interview, and on Monday कॉल आया कि आपका इंटरव्यू क्रैक हो चुका है. और विद इन 2 days, मतलब वेडनेसडे के दिन जो है कॉल आया वहां से, और वहां से पूछा गया कि आप सैलरी कितना लोगे. सो हम बोले हम बताए, तो हाँ ये हम लोग का पॉलिसी है. सो यस, हम बताए 60% ऑफ माई हाइक. हम तो ऐसे ही तो कम आगे थे कि चलो हो जाएगा, ठीक है तो हो जाएगा. तो करंट सैलरी का 60% CTC का अपना हाइक बताए, तो वो लोग एक बार में मान गया कि दे विल प्रोवाइड, दे विल गिव मी. हमको लगा कि कुछ दाल में काला है, और भी सैलरी में इंक्रीमेंट हो सकता है. हम क्या किए, 3 दिन बाद हम HR को कॉल लगाए और बोले कि मैम एक्चुअली आई डोंट हैव द आइडिया ऑफ द सैलरी पैकेज, सो कैन वी फर्दर नेगोशिएट. तो HR ने मना कर दिया, बोले कि नो, इट इज नॉट पॉसिबल, एवरीथिंग हैज बीन डन. तो हम बोले ओके छोड़ो, हटाओ, नहीं होगा. बट क्या हुआ, विद इन 1 hour HR ने एक मेल किया और मेरा सैलरी 60% हाइक से 105% हाइक कर दिया. सो नाउ माई सैलरी इज करंट CTC का 105%. आई वॉज हैप्पी, आई वॉज सो हैप्पी. बट घर में बता दिए कि ये सैलरी हाइक कितना हमको मिला है, तो मैं घर में ये बहुत सारा खुश हो गया था. बट हुआ क्या कि इन लोग विद इन 10 days, मतलब 10th of December को आई वॉज गिवन इंटरव्यू, एंड ऑन 24th of December they have offered me with a job, they have given me offer letter, and I have also accepted the offer because हमको पता नहीं था कि मेरा गवर्नमेंट में होगा या फिर नहीं होगा. आई डोंट वांटेड टू टेक रिस्क. जो मिल रहा है अपॉर्चुनिटी, उसको हम गंवाना नहीं चाहते थे, इसलिए कि हम MNC में ऑफर लेटर को साइन कर दिए. ऑन 24th of December ऑफर लेटर को साइन करके हम सबमिट कर दिए थे. 1 महीने के बाद मेरा ज्वाइनिंग था. हुआ क्या, फिर 7th of January 2023 को मेरा आता है मेल वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट से कॉर्पोरेशन से कि आपका
सिलेक्शन हो चुका है, आपका इंटरव्यू क्लियर हो चुका है एंड यू आर रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर मेडिकल टेस्ट ऑन 13th of January. सो अब जो है हम सोच रहे कि भाई यहाँ तो ऑफर एक्सेप्ट कर लिए हैं और यहाँ पर से भी ऑफर है. सो हम डिसाइड किए करना क्या है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बोले चलो हम मेडिकल टेस्ट में मेडिकल टेस्ट में अपियर होते हैं. सो मेडिकल टेस्ट में अपियर हुए, उसके बाद वहाँ मेडिकल टेस्ट भी क्रैक हो गया. सो नाउ आई वांट टू डिस्कस द डे, the 7th of January, where I got an email and I have cracked the interview. सच बता रहे कि इस दिन जो है मेरी मदर जो है लिटरली क्राइड. माई मदर वॉन्टेड दैट आई शुड गो फॉर गवर्नमेंट जॉब सिंस इट्स हैव सम प्राइड, it has some quality, it gives some respect, and it is fully secured job. So my mother cried when I got government job. She didn't cry when I got 105% hike, but she cried when I got government job because मतलब उस दिन she was crying and वो अपने घर पे नानी के घर पे कॉल लगाई और बोलती है कि मतलब मेरा बेटा आज गवर्नमेंट ऑफिसर बन चुका है. सो दिस इज द थिंग विच मेक्स मी मोर हैप्पियर. जब मेरी मम्मी बोलती है ना कि माई सन इज अ गवर्नमेंट ऑफिसर एंड क्वालिफाइड CMA, दिस मेक्स मी मोर हैप्पी. तो ये हो गया मेरा. तो आप लोग को कैसे कहते हैं ना कि आप लोग भी एक इमोशनल जोड़ो, एक इमोशनल टारगेट बनाओ कि अपना फैमिली को इम्प्रूव करना है, रिस्पेक्ट चाहिए सोसाइटी में हमको. तो गवर्नमेंट जॉब के लिए जाओ आप लोग भी, CMA बनो आप लोग. आफ्टर CMA यू विल हैव मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज विच आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ. तो हुआ क्या, वहाँ से भी मेरा मतलब 13th को हम मेडिकल टेस्ट दे दिए. उसके कुछ दिन बाद ही जो है रिजल्ट आ गया मेडिकल टेस्ट का. बाई 20th of Jan मेरा रिजल्ट आ गया. अब यहाँ पर हमको ज्वाइन करना है कुछ दिन के अंदर, MNC ज्वाइन करना है. साइन तो कर लिया ऑफर लेटर, हम ज्वाइन करना है. तो अब हम क्या किए, घर में सबसे डिस्कस किए, फ्रेंड से डिस्कस किए, सीनियर से डिस्कस किए. तो वो लोग बोला कि भाई गो फॉर गवर्नमेंट जॉब, और हम वही किए. वहाँ पर ऑफर सो उन लोग को जो है हम वहाँ MNC में सॉरी वॉरी बोल के वो ज्वाइन नहीं किए. उसके बाद जो है मेल आया PDCL से कि वी हैव टू पार्टिसिपेट इन द मीट एंड ग्रीट सेशन. सो वहाँ पर हम लोग को ग्रीट किया गया, वेलकम किया गया और बहुत सारा डिलीशियस फूड दिया गया. और हम लोग मतलब एवरीथिंग वाज देयर, चिकन, मटन, फिश, स्वीट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, एवरीथिंग वाज देयर. एंड आफ्टर दैट हो गया. फिर हम आई हैव ज्वाइंड एंड CTC, ओवरऑल CTC बोथ कंपनीज का हम ये भी कंपेयर किए थे. सो आई गॉट हायर, आई एम गेटिंग हायर एट PDCL एंड दैट इज व्हाई आई हैव ज्वाइंड PDCL. तो यस, अब क्या बोल रहे हैं कि ये देखो, ये CMA का एक क्वालिटी होता है, ये CMA में एक बात होता है जो CMAs गेट मल्टीपल चॉइसेस. उन लोग के पास चॉइस है कि वो कौन सा जॉब में जाए, लाइक MNC में जाए या फिर गवर्नमेंट में जाए. सो दिस इज द क्वालिटी, दिस इज द स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिफाइड CMAs. तो यस, आप लोगों को बोलूँगा, आप लोग की मेहनत करो, खूब जोर से पढ़ो, खूब हार्ड वर्क करो, and yes, you all will get definitely a great, a respectable job. So yes, अगर आपको जानना है कि बेनिफिट्स क्या है ये गवर्नमेंट जॉब का, क्या क्या फैसिलिटीज़ है, कितना रिस्पेक्ट है, तो इसके लिए आप चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो. आप लोग क्या है कि आप लोग बस वीडियोस को देखते हो और लाइक नहीं करते हो. भाई आप हमको मोटिवेट करो लाइक करके, तो हम भी आप लोग के लिए बहुत सारा मोटिवेशनल वीडियोस लाएंगे ऐसे. तो इसी के लिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इसको शेयर करो. थैंक यू.